So here we go, the light. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हैं वो भी साथ ही साथ कवर करते जाएंगे। हमारा टारगेट होगा कि 20 क्लासेस में मैक्सिमम मैं 20 लेके चल रहा हूँ। अगर बढ़ सकते तो बढ़ा देंगे, कोई नहीं, लेकिन हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का विद ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स में आए। सो लाइट्स, और मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा, मतलब कुछ वेबसाइट्स और रिसोर्सेज जहाँ पे जाके तुम मटेरियल्स मतलब देख सकते हो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, जो लास्ट ईयर बच्चों ने यूज किए थे। सो लाइट चैप्टर है जिसमें हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज in the future, if you take science stream, you will study about microscope and everything. So that's why it is really important. So let's start with light. So light क्या होता है? Let's start with that. Light क्या होता है? Because chapter name is light. So you will say light is something. अच्छा, light क्या है बताओ तुम्हें, हम तुम्हारे माइंड में क्या आता है when you say light? सनलाइट। सनलाइट, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होगी, क्या किसी को देख पाओ किस चीज को? नहीं भी। नहीं देख पाओगे। सो यू कैन से कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, राइट? अलाउ करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक बल्ब लगा रखा है, ओके, देयर इज अ बल्ब ओवर हियर, दैट्स नॉट अ बल्ब, something like that. Here is a bulb, suppose, and there is an object over here, suppose a book maybe. So why you're able to see this book is because the light rays are getting reflected over here, entering your eyes. That's why. If there is no light, then there are no light rays, and then you won't be able to see it. So we can say that light is a form of energy, which enables us to see objects, right? To see objects. Now, there are two ways that you can approach these classes. Since this year this is online, so I will suggest you better watch the recordings and then prepare notes, and don't forget to prepare notes, bache, because I'm telling you what will happen in the last time. You won't be able to like make your notes and you won't be able to revise quickly, but if you make your notes you will be able to. So I'm suggesting ki from today only start making notes, okay? So you can start making notes while I'm teaching you, or after the session while watching the recording, okay? So I will immediately send you the recording after it, okay? So make sure to make the notes. Now, there are certain things that you should know about the properties of like uh, light rays, right? See, they always travel in straight line. They always travel in straight line. Right now, we are discussing the ninth and eighth standard things actually. So they always like travel in straight line. That means it is rectilinear. This property is called rectilinear propagation of light. Propagation of light. And why we are discussing 8th and 9th? Because you won't be amazed that sometimes the CBSE have asked us these simple things like define rectilinear propagation of light. Though it is not in the syllabus, it is actually from 9th and 8th. So it is very important that we start with the very basics. So you may remember that in your grade 8th or 9th there was this experiment. If you remember, there was this guy. I have told you this before as well. There is a hole over here and there is a candle, suppose, over here, okay? So right now what is happening, the candle is burning, and you will see that you are able to see the candle, okay? You are able to watch the candle, okay? Now let us suppose something else is happening. The hole is over here and the candle is right over here, the same place. It is burning, and right now you're not able to see it. Why is that so? Can you tell me why you're not able to watch the candle? बताओ। दोबारा बता। कैंडल इस वाले केस में यू आर एबल टू वॉच, यू आर एबल टू सी द कैंडल, इस वाले केस में यू आर नॉट। व्हाई इज दैट सो? देयर इज अ कार्डबोर्ड, इसमें होल है, फिर यहां से तुम देख रहे हो यहाँ पे होल है, लेकिन होल ऊपर शिफ्ट हो गया है। so, इसमें क्यों नहीं देख पा रहे हो? होल ऊपर की साइड है। बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, राइट? इट कैन नॉट बी इन जिगजैग मैनर, ऐसे करके नहीं जा सकती लाइट, राइट? दैट्स व्हाई। so it is based on the rectilinear propagation of light, that is the light travels in straight line. Make sense? Yes. हाँ भैया। Yes. Okay, good. Now let's talk about reflection of light.
So reflection of light ये तुमने 8th 9th standard में पढ़ा हुआ है of light. Now when I say reflection of light, it's really easy. You may remember your definition. If you want to go through a definition, it was like something like that. There is a smooth surface, right? So whenever an incident ray like this ray is coming off and it bounces back, this is called reflection of light. So I will say the process of bouncing back of light is called reflection of light. So you can say the process of bouncing back of light from a smooth surface, of bouncing back of light from a smooth surface is called reflection of light, right? Now there are actually two types of reflection that you may or may not know. One is called regular reflection, the other one called diffuse reflection. Now the regular reflection, it is from the incident ray, it is from the smooth surface, so it will be in a particular direction. But in the diffuse, it will be from a rough surface, so you don't know where you will end up. You may end up here, you may end up over here. So that is a diffuse reflection. Are you getting it? Yes. Does that make sense to you? Okay. So reflection of light is clear. कहीं भी doubt है, you can ask me, sir. ये समझ नहीं आया भैया, ये समझ नहीं आया. Okay. So now let's move to plane mirror. Okay. So क्योंकि अभी ये plane mirror के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम plane mirror की बात करेंगे, फिर spherical mirrors के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर में है. So plane mirror के बारे में बात करें. इसकी properties आते हैं एग्जाम में कई बार. So plane mirror normally ऐसे दिखाया जाता है जैसे मैंने ऊपर दिखाया, ये एक plane mirror ऐसे दिखाया जाता है. ठीक है. हमें पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. तो प्लेन मिरर में सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई जो इमेज है सेम साइज की बनती है. मान लो यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज, सेम डिस्टेंस पे बनेगा. 5 मीटर है मान लो, तो यहाँ भी 5 मीटर सेम डिस्टेंस पे बनेगा. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? कैन यू टेल मी? लेटरल इन्वर्जन शो करता है. व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? डू यू रिमेंबर? एक दूसरे को काट. नो, लेटरल इन्वर्जन. थिंक अबाउट इट. सोचो क्या होता था. एम्बुलेंस में भी यूज होता है. एम्बुलेंस में कभी देखा है उल्टा लिखा होता है ऐसे? ये उल्टा लिखा है. हाँ, तो ये ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तो अपने बाइसेप्स देख रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट और राइट है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये ऐसे दिखेगा, ये राइट हो जाएगा लेफ्ट, मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट ना राइट बिकम्स लेफ्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. तो ये जो चीज है इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और ये प्लेन मिरर शो करता है. दैट्स व्हाई जो हमारे रियर व्यू मिरर्स हैं, दैट यूजेस दिस कांसेप्ट, एंड एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है. तो ये जो चेंजिंग ऑफ साइड होता है, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. इस पे भी कभी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रखे हैं. ठीक है, आई विल डिस्कस अबाउट देम लेटर ऑन. सो लेटरल इन्वर्जन होता है, और तुम देख रहे हो हमेशा सीधी बनती है. वर्चुअल तो है ही, वर्चुअल और अच्छा इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं. दो तरह की इमेजेस होती हैं, फिर रिमेंबर. एक होती थी वर्चुअल और एक इरेक्ट. वर्चुअल के साथ इरेक्ट. यस. एंड एक दूसरी होती थी, वो कौन सी होती थी? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट. सो वर्चुअल इमेज वो होती है which cannot be obtained on a screen. If you remember, ये obtained on a screen, तो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन ही नहीं कर सकते. जैसे प्लेन मिरर के पीछे है, यू कैन नॉट टच इट एक्चुअली. रियल जैसे थिएटर में होती है, जो पर्दे पे एक्चुअली होती है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. हमेशा याद रखना है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनती है और रियल के साथ इन्वर्टेड. सो यहाँ पे तुम देख रहे हो वर्चुअल है, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट सीधी बनेगी. सो वर्चुअल इरेक्ट भी होती है इसमें, वर्चुअल इरेक्ट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज of image formation in plane mirror. So these are the properties, the 4 properties I just wrote. Properties of image formed by plane mirror, or characteristics, sometimes called characteristics. So the same thing.
characteristics of image formed by plane mirror. Mind my handwriting, please. Plane mirror. So these are the properties. We are still doing the easy part. Now, coming to reflection in plane mirrors. Okay, reflection in plane mirrors. Here we go. Reflection in plane mirrors. ये तुमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है. बता सकते हो क्या होता था बच्चे? 2 लॉ थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिमेंबर? हाँ भैया, बताओ फिर कौन कौन सा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, प्लेन मिरर वाले जो होते थे, बच्चों वाले. थोड़ा बहुत भी कुछ याद आ रहा था, देखो. ये नॉर्मल रे और वाली रे सेम होती थी, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था, यही लिखोगे बोर्ड में कि भाई ऐसा कुछ था. वो कहेगा ऐसा कुछ नंबर दे रहा हूँ पर तेरे को 1 2. वे साइन आ रहा है, ऐसे कुछ था। नहीं, तुम आगे पहुंच गए, तुम तो पहुंच गए 10th में. नहीं, पता नहीं, बेसिक पता नहीं है, लेकिन मेन वाला पता है तुम्हें जो आगे है. साइन है वो सब तुम पहुंच गए. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. हमें अभी उसकी बात नहीं करनी, अभी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं. सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यही तो प्रॉब्लम है कि लाइट में तुम लोग बहुत सारा पढ़ते हो और एक चीज दूसरे में मैसअप कर देते हो. ऐसे तुम मिरर में लेंसेज का मैसअप कर रहे होते हो और लेंसेज में मिरर का मैसअप कर रहे होते हो. इसलिए मैंने तुम्हें सेपरेटली सब पढ़ाया था, जो तुमने रिवाइज नहीं किया और सारा गुप हो गया, राइट? लेकिन देयर इज स्टिल टाइम, एंड व्हेन आई से देयर इज स्टिल टाइम, आई एम अश्योरिंग यू देयर इज स्टिल टाइम. बट अगर तुम अब ये सोचोगे कि अब एक और बार मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो फिर नहीं हो पाएगा. फिर तो तुम वहीं आ जाओगे 50-60s में, ठीक है. सो अभी ध्यान दे लोगे तो अभी भी बात बन सकती है, ठीक है. इट्स अप टू यू नाउ. सो पहला जो है ये है कि भाई इफ यू रिमेम्बर, ये इंसिडेंट रे कहलाती थी. अब मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, मैं 10th वाले कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहा. और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहलाती थी. रिफ्लेक्टेड, नॉट रिफ्रैक्टेड. एंड ये जो परपेंडिकुलर होती थी इसको हम क्या कहते थे? माय बैड, नॉर्मल, राइट? दिस वाज कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मल जहां भी होता है परपेंडिकुलर होता है. ये आई होता था और ये आर होता था. सो फर्स्ट रूल वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. याद आया अब कुछ? तो हलवा वाला रूल था. आ गया। तो याद आ गया. दूसरा था कि द इंसिडेंट रे, लेट मी टाइप दैट, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal all lie on the same plane at the point of incidence. At the point of incidence. So you can see, actually you can see, let me change the color to red so that I can show you. The incident ray, the refracted ray and the normal all are lying on the same plane, on this plane at the point of incidence. That's the second rule. So I'm going to repeat that. Laws of reflection. Laws of reflection plane mirror says the angle of incidence is equal to the angle of refraction. Reflection, I don't know why I keep saying refraction. And then the incident ray, the refracted ray and the normal all lie on the same plane at the point of incidence. There is no sign in anything over here. Okay, is that clear? Yes. Yeah. अभी हम 10th का स्टार्ट करने वाले हैं. अब हम एक छोटे से और टॉपिक के बाद यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं प्लेन मिरर के, भैया यूजेस बताओ. जरा सोचो, बताओ मुझे क्या क्या प्लेन मिरर यूज करते हो, कहाँ कहाँ. घर में यूज करते हो टू सी योरसेल्फ, राइट? एज मिरर्स इन हाउसेस, राइट? You use it in your shops, jewelry shops and everything. So you can write as many, and like beauty products में भी जो छोटे छोटे mirrors होते हैं उसमें use करते हो. So बहुत सारे घर के जो भी हैं उनमें you can. So now let's review अभी तक हमने क्या किया before moving forward. So बहुत कुछ डिस्कस किया, बेसिक स्टफ डिस्कस किया अभी तक हमने. So जो बेसिक स्टफ है वो हम एक बार रिव्यू करते हैं, फिर हम क्लास 10th का फाइनल स्टार्ट कर रहे हैं. So सबसे पहले हमने लाइट पढ़ा कि लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, टिप्स पे होना चाहिए.
अगर तुम्हारे टॉपिक्स टिप्स पे चैप्टर कंफ्यूज नहीं करेगा, जैसे साइन वाला कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन अगर चैप्टर टिप्स पे नहीं होगा, टॉपिक्स जो है, आई एम नॉट सेइंग थ्योरी उसकी, जस्ट टॉपिक्स फॉर नाउ, तो इजी बन जाएगा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर इजी बन जाएगा। लाइट की डेफिनेशन कि भाई फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, enables us to see। उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि भाई लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद देयर वाज, लेट मी सी, देयर वाज let me see what was there, reflection of light was there, reflection of light, उसकी definition, उसके laws, there was topic of plane mirrors, plane mirrors में हमने उनकी characteristics of image देखी, characteristics देखी, uses देखे। सो हमने ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो फिनिश कर लिए, राइट? क्लियर हुआ? यस। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स पे, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। लेट मी चेंज द स्लाइड। सो नाउ द टॉपिक इज, जो 10th में मेनली है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। तो ये मेन है। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले कौन सा, देखो स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं, बताओ कौन कौन से, जल्दी से। Concave, convex. Good. So there are two spherical mirrors. The one is concave, the other one is convex. Concave कैसे बनता है, बना के दिखाओ जरा एनालिटिक से। नहीं तो गड़बड़ होगी, चलो अंडू कर दो। कनकेव होता है बच्चे ऐसे, ठीक है? दोनों याद नहीं करना, एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कॉनकेव एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स। इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, यू कैन रिमेंबर दिस वे। इफ यू रिमेंबर योर स्पून, स्पून कुछ ऐसी होती है, तो स्पून को आगे की तरफ से देखते हैं, फ्रॉम द फ्रंट इट लुक्स कॉनकेव, और जब पीछे की तरफ से देखते हैं इट लुक्स कॉन्वेक्स। ओके, दैट्स ओके, दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग इट एक्चुअली, सो दैट वी क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स। ये तो पता चला दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव फॉर नाउ, एंड इन कॉनकेव वी विल टॉक अबाउट इट्स डायमेंशन फर्स्ट, कि क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस, व्हेन आई मीन बाय डायमेंशन इज टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, terminologies. So let's go through that. So dimensions, first of all, the concave mirror बना कैसे, इसको spherical mirror क्यों कहते हैं? देखो, if I try to draw a circle over here, let me see if I can get a circle from here. Yes, I can. Suppose I draw a circle over here, okay? Now you can see one thing, कि अगर मैं जो front वाला part है उसको erase कर दूं, okay? I erase the front part. So, this part, okay, it erased the whole thing. It doesn't erase the first part, okay? So I'm going to draw a rough sketch then. There's not an option. Suppose I have a circle and I try to erase the first part. This is a spherical mirror. Suppose this is a sphere. This is sphere. And if I erase the front part, you can see I'm getting a concave mirror. That's why they are called spherical mirrors. Now you can see in a sphere, you have a radius, you have a center, you have a radius. This guy is called radius. Now that's why when you remove this part, they stay as it is. And this is C, this C right over here. Let me draw it properly. The center over here. This C is called, can you tell me what it is called? Remember, if you can. The center of curvature. Good. Center of curvature. What is this R called? The radius. Radius of curvature, right? Radius of curvature. And there is something over here called P, kind of a vertex, kind of a midpoint of this aperture, which is called what? Principal axis.
दिस इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सेस अभी आए नहीं, हम प्रिंसिपल एक्सेस पे आएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोल। क्लियर हुआ? हाँ प्रिंसिपल भैया। एक्सेस क्या होती है? जो ऐसे पास होती है, वो पूरी एक्सेस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सेस पे भी आएंगे। ये तो दिक्कत है, तुमने सारा कर लिया है। ठीक है, अगर मेरी पावर होती तो मैं तुम्हारे माइंड से सारा निकाल देता जो भी तुमने सीखा है। ठीक है, so now it is actually more difficult to teach because I have to like do destructive teaching. Actually, it's called destructive teaching that we do. In destructive teaching, what we do, we first clear misconceptions about the topic, and then we create our topic with a proper sense. So that's what is happening over here. If it was a blank slate, that like the way we did before, it would have been easier. So right now you need to do more work actually, okay? Because you have to clear your misconception, you have to set things in order and everything. So now प्रिंसिपल एक्सेस देखो क्या होते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस सी है, यहाँ पे पी है, ये आर है, जहां से ये पास होती हैं, ये इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस। दिस एक्सेस कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस। क्लियर हुआ? और ये जो तुम्हारा होता है, इसको हम कहते हैं अपर्चर, जिसपे रिफ्लेक्शन होता है, इसे कहते हैं अपर्चर भाई, मिरर का साइज एक तरीके से कह सकते हो। अपर्चर इज ऑल्सो कॉल्ड द साइज ऑफ द मिरर। तुम्हें जब लैब में जाओगे कभी, तो वो तुमसे बोलेंगे टीचर कि इतने अपर्चर का लेके आओ, इतने साइज का लेके आओ मिरर या लेंस, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अगर तुम्हें कोई पूछे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर, कैसे बताओगे? क्या भैया? अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सो हाउ विल डिफाइन इट, कैसे बोलोगे तुम? ये सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। क्या सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर? नहीं, वो तो सी होता है बच्चे। सारी पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ कन्वर्ज करती हैं? क्या भैया? सारी पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ कन्वर्ज करती हैं? इंसिडेंटली। ये सारे फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, करती है नहीं करती? इफ रिमेंबर, तो यही इसी से डेफिनेशन बनाएंगे हम कि भाई द पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सेस कन्वर्ज is called principal focus of the mirror, of the concave mirror. सामने आया? Yes or no? Yeah. So you have to, because कभी कभार आ जाता है define focal length. So the point where all the parallel rays converge is called focus. Okay, the point where the parallel rays parallel to what? Parallel to principal axis converge at a point is called focus. That point is called focus. Now, if someone asks what is focal length, then so it is the distance between focus and the pole. This is called focal length. It is distance between focus and pole. Okay, that's my focal length. Is it clear? हाँ भैया। जैसे तुमने बचपन में करा हो, मैंने तो करा था कि कॉनकेव मिरर लिया था एंड आई टुक द पेपर, यहाँ पे इसके जगह जगह पे रखने की कोशिश करी, और फिर देखा कि ये जो है फोकस पे जब रख रहा था तो ये जलने लगा था थोड़े टाइम में। थोड़ा टाइम लगा लेकिन जलने लगा था, क्योंकि सारी सनलाइट कहाँ पे फोकस होने लगी थी? फोकस पे, राइट? यही तुम्हारा सोलर कुकर में भी यूज होता है, यही पैटर्न, लाइक यही एप्लीकेशन। दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमने टर्मिनोलॉजीज बात करी कॉनकेव मिरर की, सारी फिर से एक बार देखते हैं। पहले था लेट मी थिंक, सी, देन आर, देन पी, देन प्रिंसिपल एक्सिस, देन फोकल लेंथ। सो यही टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ये हमने कॉनकेव मिरर की बात कर ली। हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं इन्हीं के बारे में। सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? पहले तुमने आगे वाला पोर्शन रब किया था, नाउ यू विल इरेज द बैक पोर्शन। So if I draw a circle, sphere, not a circle, this is 3D, I cannot draw 3D over here. So this will be what? This will be my convex mirror. Now you can see again, this is the center, because पीछे से भी ऐसे center होगा, और ये radius होगा, radius of curvature. This will be pole this time, and this will be principal axis. अब जहां पे मेरी जो parallel rays आ रही हैं, okay, and they appear to diverge, I'm emphasizing on it, they appear to diverge from a point
दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ऐसा लगता है कि वहां से डाइवर्ज हो रही है। ओके, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि डाइवर्ज करता है। एंड देन कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड व्हाट? वे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वहां पे फोकस कन्वर्ज करता है। So अगर कोई पूछे फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, so you will say the point where the rays appears to diverge from is called focus। and यहाँ से पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। दिस इज द फोकल लेंथ। So this is the terminologies। Now there is one small thing that you should remember कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके आधे पे होता है फोकस, मतलब कि f जो होता है वो क्या होता है, r/2 होता है। This relation is really important कि focal length is half of what? Focal length is half of radius of curvature। Suppose I give you a question, NCERT question ही है ये, कि भाई ऐसा है कि मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ फोकल लेंथ क्या है। अभी मैंने कोई मिरर की बात नहीं करी है, कोई स्पेसिफिक, जस्ट फॉर्मूले से बताओ क्या होगा। 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter, because focal length is r/2 and 20/2 is 10, that is 10 centimeter, and we are done with it। Make sense? हाँ भैया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की टर्मिनोलॉजीज क्लियर करी हैं सारी, उसके बेसिक्स क्लियर करे हैं, उसके हाथ पैर जो हैं वो क्लियर करें हैं। अब उनके हाथ पैर को चलाएंगे, मतलब कि जो इमेजेस बनती हैं, क्या क्या इमेजेस बनती है वो देखेंगे, जो मेन है। क्योंकि अगर इमेजेस बनाने आ गए ही, और पेंसिल से स्केल से बनानी चाहिए तुम्हें, अगर अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि फिर ही क्वेश्चंस कर पाओगे अटेम्प्ट। क्वेश्चंस तुम्हें अपने आप इमेजिन कर पाओगे कि अच्छा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो ये वाला केस है, देन यू विल एबल टू डू देम इजीली। मैं ये नहीं कह रहा फिर नहीं कर पाओगे, लेकिन दैट विल टेक सम टाइम, एंड कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इसलिए इमेज फॉर्मेशन अच्छे से घर पे एक व्हाइट पेपर में बना के रखना है अच्छे से पहले ही। सो द टॉपिक नाउ इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग। Now since this is a crash course, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, वरना सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो वैसे मैं, क्योंकि तुमने कर रखा है भैया। है। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। एक सेकंड तुम एनसीईआरटी खोलो, मैं आता हूँ जरा, एक सेकंड। यस, कैन यू हियर मी? हाँ भैया। बिल्कुल। सो अब हम रूल्स पढ़ेंगे भाई, कैसे कॉनकेव मिरर से रूल्स मतलब अभी हम इमेजेस नहीं बनाएंगे, उन इमेजेस को बनाने के लिए जो रूल्स पता होने चाहिए पहले वो कर रहे हैं हम। तो पहला रूल, वेरी फर्स्ट रूल कम्स हियर। वेरी फर्स्ट रूल इज दिस कि अगर कोई भी रे, जो मैंने पहले ही बता दिया एक्चुअली डेफिनेशन में, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, अभी हम कॉनकेव मिरर कर रहे हैं, कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कन्वर्ज जाती है फोकस पे। दैट इज माय फर्स्ट रूल। दूसरा रूल इसका उल्टा है, कैन यू टेल मी क्या होता था दूसरा रूल? जस्ट इसका उल्टा होता है, इफ यू कैन। मैं याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। अगर कोई फोकस से जा रही है, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस देन इट विल गो पैरेलल, ठीक है, क्लियर। हाँ भैया। तीसरा रूल, अगर कोई रे सी से जा रही है, इफ यू रिमेंबर सी गाय इज न्यूट्रल जस्ट लाइक मी, इट इट डजंट मैटर क्या कर रहे हो, वो नॉर्मल रहेगा, ओके, नॉट लाइक मीन लाइक अ मॉन्क, बुद्धा की तरह, राइट। सो अगर ऐसा कोई जा रही है रे, और वो बिल्कुल वापस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड रूल।
फोर्थ रूल जो ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन पता होना चाहिए कि अगर कोई पोल पे जा रही है रे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, मतलब ये आई और आर वाला. So that's how it is. So four rules discussing again. अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाती है, अगर कोई फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, सी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल कम बैक एग्जैक्टली एज द वे इट वाज. एंड फोर्थ वन इज पोल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाता है. इज इट क्लियर? यस. हाँ भैया. अब हम करने वाले हैं मेन चीज जिसमें बच्चों को मजा आता है, कभी कभार नहीं आता, अगर समझ नहीं आता तो. So we are going to do formation of images now because we know the rules. So let's do formation of images by concave mirror. So formation of images. So हम करेंगे क्या, इसमें सब चीजों के बारे में बात करेंगे. पोजीशन, इफ रिमेंबर क्वेश्चंस भी ऐसे होते थे, पोजीशन, नेचर क्या है, साइज क्या है, राइट? तीन चीजें देखते थे हम. what was that? पोजीशन देखेंगे इमेज की, नेचर देखेंगे कैसा वर्चुअल इरेक्टेड रियल इन्वर्टेड है, और साइज देखेंगे कैसा एनलार्ज्ड है या फिर डिमिनिश्ड है, छोटा है बड़ा है. पोजीशन मतलब कहाँ पे बनी है इमेजेस. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो सपोज आई टेक द कॉनकेव मिरर, यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर रखा. ठीक है, सो कॉनकेव मिरर रखा, ये P है, ओ माय बैड, दैट इज F, दिस इज P, दिस इज C, राइट? सो सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं, P एंड F के बीच में रखते हैं. P पे तो रख नहीं सकते भाई, मिरर के ऊपर एग्जैक्टली रखोगे तो कुछ होगा ही नहीं ना, इन दोनों के बीच में रखते हैं कहीं. ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक ऑब्जेक्ट. सो राइट नाउ द ऑब्जेक्ट पोजिशन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, or F and P is the same thing. So it's always a good idea to start from here. Okay, P, हम डिस्टेंस भी P से ही नापते हैं एक्चुअली, पोल से, जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर, वो बाद में चलो डिस्टेंस वाला कंसेप्ट कार्टेशियन वाला डिस्कस करूंगा. तो अब इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जो रूल्स पढ़े थे वो यूज करेंगे हम इसके लिए. ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे. अगर कोई रे पैरेलल जा रही है ऐसे, ये ऑब्वियसली लाइट देगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट पड़ रही होगी यहाँ पे, तो ये फोकस से पास होता है. रिमेंबर, ये कहाँ से पास होता है, फोकस से. अगर कोई चीज हमारी कहाँ से पास हो रही है, अगर यहाँ पे डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं है, रियल बना लो, क्योंकि डॉटेड वर्चुअल साइड पे बनती है. और अगर कोई रे सी से पास हो रही है ऐसे, सी से भी जा रहा है, तो सी से वापस ऐसे कैसे आ जाता है. अब आई कैन सी कि यहाँ पे तो ये मीट नहीं करेंगे, ये ऐसे फैलती जा रही है, इन्फिनिटी पे चलेगी. लेकिन पीछे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इमेज फॉर्मेशन को तुम्हें इंटरसेक्ट करवाना होता है, पीछे डॉटेड क्योंकि वो वर्चुअल साइड है, तो यहाँ पे इमेज बन रही है एट बिहाइंड द मिरर. तो ये मेरी इमेज बनी है. अब तुम बताओगे, सबसे पहले बताओगे तुम पोजीशन, कहाँ बनी पोजीशन इमेज, बिहाइंड द मिरर. वेरी गुड. टेबल भी दे रखा है एनसीईआरटी में, इफ आई रिमेंबर राइट. उसके बाद नेचर बताओ कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड साइज, एंड लार्ज. वेरी गुड. See, now you're reminding yourself कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था. Good. So first case clear हो गया, I guess. Let's do the second case. अब बताओ कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, कैन यू गेस? पीछे से तो चलते जाएंगे तो अब कहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट? भैया के ऊपर नहीं आएगा भाई, कहाँ आएगा? सी या फिर एफ पे रख सकते हो राइट, फिर सी एंड एफ के बीच में, फिर सी पे, तो ऐसे चलते जाएंगे राइट, क्योंकि पी पे नहीं रख सकते लेकिन एफ पे तो रख सकते हैं, वो तो थोड़ा डिस्टेंस पे. सो एफ पे रखते हैं जरा, लेट्स कीप इट एट एफ. सेकेंड पोजिशन इज एट एफ, एट एफ वी आर कीपिंग इट. लेट्स डू दैट. अगर मैं एफ पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ओके, इफ आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट एफ, इफ आई कीप इट एट एफ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहां से मैंने पैरेलल भेजा, सो ये चले गया इंफिनिटी पे. अब सी वाला देखा, सी से ऐसे गया, वापस ऐसे आ जाएगा राइट. आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्राइंग डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन वर्चुअल की चाहिए होती है. तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ये मीट ही नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल जा रही है राइट. तो दैट मीन्स इमेज जो है तुम्हारी यहाँ बनेगी, इमेज तुम्हारी यहाँ बनेगी. सो इमेज जो यहाँ बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट इमेज के फीचर्स देन. नाउ यू मे बी लाइक कि हाँ मेरे को सामने तो आ रहा है, आई कैन डू इट विदाउट प्रैक्टिस, लेकिन लेट मी टेल यू, जब तुम फिर से बनाओगे तुम्हें रूल्स कुछ याद नहीं आएगा. अगर तुम्हें पहले से पता होगा प्रैक्टिस है, तुम ऑटोमेटिकली ऐसे बनाओगे कि इन्फिनिटी पे जाए. ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है इसकी.
सो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले पोजीशन, कहाँ पे बनी इमेज? वे इंफिनिटी. At infinity, right? Size, sorry, nature. या रियल एंड Good. इन्वर्टेड. Real and inverted. जब भी इधर साइड होते तो रियल साइड होगी, वर्चुअल साइड होता है. देख भी सकते हो नीचे की तरफ आ रही है, इन्वर्टेड. एंड साइज एंड लार्ज. हाईली एनलार्ज. इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज यूज से. ओके, बहुत बड़ी बनेगी. ओके, सो सेकंड केस इज डन. लेट्स गो फॉर द थर्ड केस नाउ. अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट बताओ? हमने एफ पे रख लिया, पी और दोनों के बीच में रख लिया. अब कहाँ रखेंगे? सी एंड एफ. Very good. So object will be between C and F. So अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं C and F के बीच में, देखते हैं क्या होता है. So C and F के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूं मैं. Let me take a different color. So मैंने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट. If you remember, सेम रूल्स यूज करते जा रहा हूँ बार बार. पैरेलल जाते हैं तो फोकस से ऐसे, और अगर C से जाता है तो वापस ऐसे ही आ जाता है, राइट? Let me do that. Great. सी से जाता है तो वापस ऐसे ही आ जाता है, ठीक है? तो पीछे देखोगे तो ये तो फैलता जा रहा है, तो पीछे तो मीट करेगा नहीं, लेकिन आगे मीट करेगा. ये देखो. Why I know that? Because of my practice. So you should also. So यहाँ पे मीट कर रहा है. So that is my image. Now you will tell me everything about image. Let's see if you can. सबसे पहले पोजीशन कहाँ बनी है? इमेज कहाँ बनी है? ये सी पे, बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी. गुड. सी के बियॉन्ड. नेचर क्या है? फिर नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. गुड. रियल एंड इन्वर्टेड. साइज क्या है? एंड लार्ज. Good. Enlarge. Very good. Or you can say magnified. So this is done. Let's go for the fourth. How many cases are there? Do you remember? For concave mirror. ये 6. Very good. So हमने P पे नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में रख लिया था. इन दोनों के बीच में रख लिया था. अब कहाँ रखेंगे बताओ? ये सी पे. Good. So object at C. Object at C. So अगर मैं C पे रखूं तो देखते हैं क्या होता है. रिमेंबर C was neutral, तो देखना अब क्या होगा. So अगर मैं रखता हूँ C पे तो पैरेलल गया तो फोकस से जाएगा ऐसे. I don't know why I'm again drawing dotted. Okay. Now you cannot go from C, right? You cannot C पे ही ऑब्जेक्ट है, C वाला रूल नहीं यूज कर सकते. तो यू यूज अदर रूल कि अगर F से जाता है तो पैरेलल हो जाता है. सो पैरेलल हो गया. सो पैरेलल हो गया तो ये यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है C पे ही. तो तुम देख सकते हो बिल्कुल सेम साइज का ही बनता है कि C कहता हूं मैं, C इज न्यूट्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट सेम थिंग दे देता है. चलो तो बात करते हैं फिर इसके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की. बताओ क्या क्या हुआ. पोजीशन सबसे पहले एट सी बनेगी. एट C. नेचर ये रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इन्वर्टेड. साइज ये साइज तो शायद सेम ही होगा. सेम साइज. ठीक है. सो फोर्थ केस इज आल्सो डन. अब कहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को? एट इन्फिनिटी. नो, अभी भी एक जगह है जहां हम रख सकते हैं, फिर बाद में इन्फिनिटी जाएंगे. बियॉन्ड सी. यस, बियॉन्ड C हम रखेंगे, फिर इन्फिनिटी पे जाएंगे. ठीक है. सो बियॉन्ड C करते हैं. सो ये मेरा मिरर, ये C, ये F और ये P. सो अगर मैं बियॉन्ड C रखता हूँ तो देखो अब क्या होगा. पैरेलल गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, बियॉन्ड C. सो अगर पैरेलल गया तो फिर ये फोकस से जाता है, यू नो दैट ऑलरेडी. और अगर मैं C से भेजता हूँ, क्योंकि अब मैं C के पास वाले से रूल यूज कर सकता हूँ, स्ट्रेट होगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे मीट कर रहा है, C एंड F के बीच में इमेज बन रही है. सो टेल मी नाउ अबाउट द इमेज. व्हाट इज द पोजीशन? बिटवीन एफ एंड सी. बिटवीन F एंड C. नेचर ये रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इन्वर्टेड. साइज बस साइज का नहीं पता. साइज छोटी हो गई तो हम उसको कहेंगे डिमिनिश्ड. डिमिनिश मतलब छोटी हो जाना. ओके, यू कैन से इन इजी लैंग्वेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इफ
If you're not able to remember कि भाई diminished ऐसा कोई word, just say smaller than the object. My task is not to like get you like tangled up into vocabulary. It's to make things easier for you. You can say smaller than the object, okay? Smaller than the object also. अगर कभी terminology याद ना है, magnified or ऐसा कुछ, so you can say that. Now let's. Is this clear? ये वाला case? हाँ भैया। चलो तो लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज व्हाट? दैट इज जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे होता है, जो तुम बोल रहे थे, एट इंफिनिटी। यस. तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है तो होता है क्या बच्चे कि ऐसे पैरेलल रेज आते हैं हमेशा इंफिनिटी से और फोकस पे कन्वर्ज आते हैं, पॉइंट साइज बनता है बिल्कुल इमेज. तो यहाँ पे बनती है इमेज और रियल साइड है तो रियल इन्वर्टेड बनेगी. सो let's talk about image properties then. Object is at infinity. So quickly tell me about the image. What is happening over here? एफ पे ही बन रही इमेज। Image, nature, sorry, position at f, nature, रियल एंड इन्वर्टेड। real inverted, and size, डिमिनिश्ड। point size you'll say. Highly diminished if you want to say diminished, okay? Point size or highly diminished. Just like it was highly magnified, so highly diminished. Make sense? Yes, is it clear? हाँ भैया। Okay. Now let's move on to uses of concave mirror. ठीक है? Uses of concave mirror. So ये आ जाता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से कर लेना. पहले uses से पहले let me go to the NCERT if I can, and let's pick out that table if you remember जिसमें सारे cases होते हैं. तो do you have NCERT with you right now? है भैया। हाँ, तो उसमें देखो एक टेबल होगा जहाँ पे सारे केसेस समराइज्ड होते हैं. हाँ भैया है। So let me show that, ताकि हम एक तरह से रिव्यू सा देख लें कि क्या क्या केसेस थे. So if I go down, can you see my screen? यहाँ पे देखो. हाँ भैया दिख रही है। तो यहाँ पे देखो वही केसेस है, बिटवीन पी एन एफ, बिहाइंड द मिरर एंड लास्ट वर्चुअल इंडेक्स. तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, बस एक ही केस है जहाँ पे वर्चुअल इंडेक्स बनती है, बाकी सब केसेस में रियल इन्वर्टेड. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया. ठीक है. और ये जो बियॉन्ड सी और बिटवीन सी है एक दूसरे का उल्टा है. देखो बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो बियॉन्ड सी बनता है, बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन एफ एंड सी बनता है. राइट. ये डिमिनिश्ड है एनलार्ज, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे, बस रियल इन्वर्टेड सेम. सी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं. एट एफ रखते तो एट इंफिनिटी बनता है, एट इंफिनिटी रखते तो एट द एफ बनता है. मेक सेंस? So this table is really important. You should draw it in your notes as well. Okay. Now we can move forward to the whiteboard. So अब हम करने वाले हैं यूजेस क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के. कॉन्वेक्स में, अच्छा चलो यूजेस से पहले हम क्या करते हैं, यूजेस कर लें तो सही है क्योंकि हमने अभी अभी डायग्राम्स पढ़े. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. सो पहला यूज जो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि भाई इफ यू रिमेंबर, जो तुम्हारी हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, हम क्या करते हैं अपनी लाइट को फोकस पे रख देते हैं, जो भी लाइट सीथिंग है सोर्स को. तो ये जाता है ऐसे, और सिंस फोकस पे रखा हुआ तो पैरेलल बीम देगा ऐसे, इसलिए एक पैरेलल बीम मिलती है बढ़िया सी. सो इट्स यूज्ड इन, क्या टेल मी. ये टॉर्च में भी यही होता है ना? हाँ, टॉर्च में ही होता है. इन टॉर्चेस, in vehicle headlights to get a powerful beam of light, right? Okay. दूसरा, if you remember, शेविंग मिरर्स जो होते हैं, इसमें तुम्हें देखो शेविंग मिरर में तो स्पेशली यही होना चाहिए कि तुम पास जा रहे हो और तुम्हें पता है कि जब पास जाते तो बड़ी हो जाती है. तो सिंगल केस था, इफ रिमेंबर, ये वाला सिंगल केस. एंड लास्ट और वर्चुअली इरेक्ट, तुम अपनी ऑब्वियसली अपनी जो सुंदर सी शक्ल है उसको सीधा देखना चाहोगे, राइट? सो इन शेविंग मिरर्स, जो डेंटिस्ट होता है वो भी इसी को यूज करता है कि डेंटिस्ट चाहता है दांत अच्छा सा बड़ा सा दिखे, तो अंदर ले जाता है छोटे से पीस को और मिरर में देखता है वो बड़ा सा दिखता है, पूरा मैग्नीफाइड, कैविटी एंड एवरीथिंग. सो डेंटिस्ट भी यूज करता है. एंड लास्ट जो मैंने पहले बता रखा है, सोलर कुकर में. दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस. कभी कभार क्वेश्चंस में लिखा जाता है कि भाई कौन सा मिरर है, फिर ऐसे ऐसे करके ए बी करके, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए. इज दिस क्लियर? यस और नो? हाँ भैया. ठीक है.
अब हम क्विकली कॉन्वेक्स मिरर के भी मिरर वाले डायग्राम्स बनाने वाले हैं। फिर हम आज जो है मिरर डायग्राम्स खत्म करके रखेंगे। कल हम थोड़ा न्यूमेरिकल साइड पे ज्यादा होंगे, जो कल या फिर जब भी क्लास होगी। आज क्या वेडनेसडे ना, अब तुम्हारी क्लास फ्राइडे होगी, ठीक है। और आई विल लेट यू नो, इस वीक 2 क्लास लेनी थी, हो जाएंगी तुम्हारी। सो कॉन्वेक्स मिरर, मेक श्योर जो नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूछूंगा बच्चे, वरना क्रैश कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। कॉन्वेक्स मिरर, सो कॉन्वेक्स मिरर के पहले रूल्स समझ लेते हैं कि डायग्राम रूल्स कैसे बनते हैं। सो रूल्स ऐसे हैं कि सबसे पहले अगर पैरल आ रहा है तो इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, ऐसे पहला रूल। मैं इमेजेस बनाने के लिए यूज करूंगा ये रूल्स। दूसरा, अगर तुम फोकस पे दोगे, कोई भी रे अगर फोकस पे आ रही है ऐसे, तो ये पैरल हो जाएगी, ठीक है, इट अपीयर्स ऑब्वियसली। तीसरा, अगर तुम कोई भी रे सी पे दोगे, तो मैंने बताया था सी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है कि जाओ भाई वैसे ही, तो सी के वापस चले जाएगा। और पोल वाले पे तो हमेशा की तरह वही यूज होता है कि पोल पे हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होता है। आई मेक सेंस? यस। हाँ भैया। अब देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर के में बस 2 ही केसेस होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इधर की तरफ कुछ है ही नहीं, उसका सारा कुछ इधर है, एफ सी एंड एवरीथिंग। So that's why it has only 2 places, between P and infinity, right? Between P and infinity or at infinity, or you can say in front of the mirror or at infinity. So पहला केस जो है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो जब क्या होता है, जब देखते हैं, अगर मैं इन फ्रंट ऑफ मिरर रख देता हूँ, तो अगर मैं इन फ्रंट ऑफ मिरर रखता हूँ, मान लो मैंने डिफरेंट कलर यूज करता हूँ उसके लिए, मैंने यहाँ पे रखा। सो इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे F और यहाँ पे C। सो अगर मैं रे भेजता हूँ, तो रे जो है, थोड़ा और बेटर बनाना पड़ेगा डायग्राम, थोड़ा टिल्टेड सा हो गया मेरा। P F C, ओके, इन फ्रंट रखा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ पैरेलल जाता हूँ मान लो, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, इफ यू रिमेम्बर। और अगर मैं सी पे भेजने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सी पे भेजने की कोशिश करता हूँ, तो वापस ऐसे ही आ जाता है, ये वर्चुअल साइड है डॉटेड। अब तुम देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिटवीन पी एंड एफ, मतलब कि इमेज यहाँ बन गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो अब बताओ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन बताओ पहले कहाँ पे है। एट इंफिनिटी। हाँ, इमेज की, और या ऑब्जेक्ट भी इन बिटवीन। फ्रंट ऑफ द मिरर है, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ। एंड व्हाट इज द साइज? डिमिनिश्ड। Diminished, good. Nature? टोल एंड इरेक्ट। Virtual and erect, because this was the virtual side, and you can say it's erect, so it must be virtual. The second case that you were saying, infinity, तुम्हें infinity ज्यादा पसंद है तो वो करते हैं अब। So अगर infinity पे होगा ऑब्जेक्ट, so I told you पहले भी infinity से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, और वो हमेशा फोकस पे जाती हैं। फिर appears to diverge वाला केस, appears to diverge वाला केस, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। So let's say इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ क्या क्या होंगे बताओ। सबसे पहले पोजीशन, टेल मी, पोजीशन कहाँ है? फोकस पे। एट फोकस। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। Virtual and erect. And what is the size? हाईली डिमिनिश्ड। Highly diminished. Very good. दो ही cases होते हैं इसके। Let's summarize that through the table if we have the table for that also. Hopefully we should have. ये ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमेशा एक चीज, ये पॉइंट्स तुम्हें नोट करने चाहिए नीचे, नोट डाल के ऐसे, जैसे मैंने उसमें बोला, उसमें बस एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड। इसमें सारे केस में वर्चुअल इरेक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि सारे केस में जो तुम्हारा कन्वेक्स में होता है उसमें वर्चुअल इरेक्ट होता है। और अगर मैं ऊपर जाऊं, इसमें एक चीज नोट करने की ये है कि जब पी एंड एफ के बीच में रखता हूँ, जिसके एप्लीकेशन यूजर्स भी इसलिए ही है कॉनकेव मिरर के, बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट, कि भाई एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट होता है, बाकी सब में क्या होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। सो दिस इज डन। सो लेट्स रिव्यू व्हाट वी डिड टुडे क्विकली। सो टुडे हमने क्या क्या खत्म कर लिया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि लाइट क्या होता है, इफ आई रिमेम्बर द टॉपिक्स। लाइट, देन आई रिमेम्बर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, rectilinear propagation of light also, then properties of image formation concave mirror, sorry, in plane mirror.
I remember doing, हाँ भैया दिखाओगे? रुक जा अभी आता हूँ, give me a मम्मी को minute. बता देना. ठीक है. Properties of plane mirror, then I did let me remember, reflection in plane mirror, laws of reflection. Then we talked about terminologies, दोनों मिरर की, spherical mirrors की. Then we talked about concave mirror के image formation rules. Then we talked about convex mirror के image formation rules. तुम्हारा छोटा सा होमवर्क ये है कि नोट्स बनाना है एक तो, जो अभी तक कर लिया, और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर खुद से करोगे क्या क्या है, और तुम्हें फिर वो मेरे को सेंड करना है जो नोट्स बनाओगे, सो दैट आई कैन सी तुम अच्छे से नोट्स बना रहे हो. क्लियर हुआ? यस. अभी और लेट मी टेल यू उसके जो यूजेस हैं वो आता है एग्जाम में. ठीक है, तो ये होमवर्क दिया है मैंने, देखता हूँ तुम कर पाते नहीं कर पाते. अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कुछ डेट शीट आई है या फिर कुछ सीन हुआ है अभी स्कूल में? हाँ भैया. कब है? ये तो पता है मेरे को मई में बोर्ड्स हैं, लेकिन स्कूल का कुछ आया है? नहीं भैया, 2 प्री बोर्ड तो हो गए. 2 प्री बोर्ड हो गए ना, तो अब तुम्हारे डायरेक्ट बोर्ड्स होंगे, राइट? नहीं भैया, 1 प्री बोर्ड और होगा शायद. एक प्री बोर्ड और होगा. तो तुम्हारे स्कूल में ऑप्शनल नहीं है कि देना है नहीं देना वाला सीन? नहीं भैया. चलो ठीक है, तो मैं ऐसा करना, फिर अभी जो मैं करा हूँ उस पर ध्यान दो. ठीक है, जितना अपने से कर पा रहे उतना करो, वेल एंड गुड है वो. ठीक है, तो क्योंकि तुमने सिलेबस कर रखा है. एंड ट्राई टू फोकस ऑन बायोलॉजी एज वेल. मैं ये नहीं चाहता कि तुम इसमें तो अच्छा स्कोर करो, बायोलॉजी में डाउन हो जाओ. कभी कभार ऐसा भी हुआ है, ठीक है, बच्चों के साथ. कभी कभार वो सोचते हैं कि बायो में करता ही नहीं हूँ, इस चीज से पास हो जाता हूँ बस. लेकिन अगर पास ही होना है तो फायदा ही नहीं है, फिर तुम ऐसे ही पढ़ लो, राइट? तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो बायोलॉजी खुद से करते चलो साथ के साथ. कोई डाउट आता है, आई कैन हेल्प यू आउट अ बिट. आई कैन नॉट गो इन अ वेरी डीप लेवल, लेकिन आई कैन हेल्प यू आउट अ बिट. ओके, so that's it for today. That's our first class, and let's see you then day after tomorrow. Okay, take care. Good evening.